Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 24 हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study lesson 24 Healthy Mind in Healthy Body. So let's start. One who is moderate in his diet, activities, exercise and duty. One who whose periods of sleep and wakefulness are moderate. Yoga drives away his ailments. Body and mind are two parts of a whole. If mind is happy, we do our work actively and energetically. If the body is healthy, the mind also remains radiant, alert and enthusiastic. The yoga school of thought tells us how to facilitate the body, mind functioning so that one may enjoy happiness, peace and fulfillment in life. Yoga, the science and art of life, was discovered by our forefathers and they handed it over to us as a priceless heritage. Its value is increasingly realized in today's world. Human life today is quite stressful. Yoga is a science that enlightens us regarding why we experience stress, tension and pain. It suggests a lifestyle which is free from stress and pain. It makes our body and mind effective for leading a happy and healthy life. In this lesson, we will try to understand the meaning and nature of yoga, the different types of yoga and some techniques to keep ourselves physically and mentally fit. So, the introduction of this lesson says, जो व्यक्ति अपने डाइट को अच्छा रखेगा, डेली एक्टिविटीज, एक्सरसाइज और ड्यूटीज को अच्छे से करेगा, अच्छे से सोएगा और मॉडरेट रहेगा अपने लाइफ में, और जो योगा है वो उसे हर एक बीमारी से दूर रखेगा। हमारा जो बॉडी और जो माइंड है ये टू पार्ट्स है, लेकिन इन दोनों को मिला करके ही हमारा संपूर्ण रचना होता है। अगर हमारा माइंड हैप्पी रहेगा तो हम लोग कोई भी वर्क एक्टिवली करेंगे और एनर्जेटिकली करेंगे। अगर हमारा बॉडी हेल्दी है तो हमारा जो माइंड है वो भी रेडिएंट रहेगा, अलर्ट रहेगा और हमेशा खुश रहेगा। योगा स्कूल ऑफ थॉट हमें क्या बताता है कि हम लोग कैसे अपने बॉडी को फैसिलिटेट करेंगे, हमारा जो माइंड है वो किस प्रकार से फंक्शन करेगा और किस प्रकार से हम लोग हैप्पीनेस एंजॉय करेंगे, पीस और जो भी हमारे लाइफ का फुलफिलमेंट है उसको अचीव करेंगे। योगा एक ऐसा साइंस है और आर्ट ऑफ लाइफ है जिसे हमारे फोर फादर्स ने डिस्कवर किया था और योगा को हमें हैंड ओवर किया, ठीक है, हमें दिया। ये एक प्राइसलेस हेरिटेज है जिसकी कोई कीमत नहीं है और इसकी जो वैल्यू है आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से योगा की वैल्यू बढ़ रही है और हम लोग आज की दुनिया में से रियलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि योगा हम लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। ह्यूमन का जो आज लाइफ हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। योगा एक ऐसा साइंस है जो हमें इनलाइटेंस करता है कि हम लोग क्यों स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, हमें क्यों टेंशन होता है, हमें किस प्रकार से पेन होता है। ये हमें सजेस्ट करता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसे स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए, पेन से फ्री होना चाहिए। ये हमारे बॉडी और माइंड को इफ़ेक्टिव बनाता है और हम एक अच्छे लाइफ को जिए, हेल्दी लाइफ को जिए, हैप्पी होके जिए, ये हमें सिखाता है। इस लेसन में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो नेचर ऑफ योगा इसका मतलब क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा क्या और कुछ टेक्निक्स है जिससे हम लोग फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। तो उस चीज़ों के बारे में हम लोग अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 24.1 व्हाट इज योगा। देन लेट्स सी व्हाट इज योगा। Yoga literally means union, that is being one with the supreme energy. It is communion of individual being with the universal being. It is a passage from ignorance to self-knowledge. Yoga is an effort towards self-perfection. By helping the union of the body with the mind and mind with the soul, it creates an impressive symphony of life.
Yoga is a science which leads to healthy in the body, peace in mind, joy in the heart, and liberation of the soul. It also means the discipline of the body, mind, intellect, emotions, and will giving poise to the soul. It transforms the inert body to the level of vibrant mind into the union with the serenity of the higher consciousness or soul. Yoga is of great benefit to the entire humanity. In its essence, it is a passage from the ordinary consciousness in which we are aware only of appearances into a higher, wider and deeper consciousness. तो योगा का लिटरली मतलब क्या होता है? यूनियन करना, जिसमें हम लोग एक साथ यूनियन कर ले एक सुप्रीम एनर्जी के साथ. ये एक ऐसा कम्युनियन है इंडिविजुअल के लिए जिसमें हम लोग यूनिवर्सल बीइंग फील करते हैं. ये एक ऐसा पैसेज जिसमें हम लोग सेल्फ नॉलेज को जब इग्नोर करते हैं तो योगा हम लोगों को खुद के बारे में समझने में हेल्प करता है. योगा एक ऐसा एफर्ट है जिसमें हम लोग सेल्फ को परफेक्ट करते हैं, मतलब खुद को हम लोग योगा के हेल्प से परफेक्ट बनाते हैं और हम लोग यूनियन को हेल्प करते हैं. हमारे बॉडी और माइंड को यूनाइट करने में हम लोग हेल्प करते हैं. किसके साथ? सोल के साथ, हमारी आत्मा के साथ. ये हमारे अंदर इम्प्रेसिव सिम्फोनी का क्रिएट करता है ताकि हम जो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके. योगा एक ऐसा साइंस है जो कि बताता है कि किस प्रकार से जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा, हमारा जो माइंड है वो पीस फील करेगा और हमारा जो हार्ट है वो जॉय फील करेगा और हमारा सोल के साथ लिबरेशन होगा. इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इमोशंस, ये जितनी भी चीज़ें वो डिसिप्लिन में रहे और हम लोग अच्छे से सोल के साथ कनेक्ट रहे. ये हमारे इनर्ट बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है वाइब्रेट माइंड के साथ और इसका यूनियन होता है हायर कॉन्शियसनेस या फिर सोल यानी कि आत्मा के साथ. योगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. जितने भी ह्यूमैनिटी है उन सभी के लिए ये एक ऐसा पैसेज है जो कि ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से हम लोगों को हायर और वाइडर डीपर कॉन्शियसनेस तक लेके जाता है. Yoga is also considered as a discipline for happy and effective living. There are two aspects of yoga, outer and inner. The outer aspect of yoga, Vahirang, deals with the yama, niyama, asana and pranayama which revitalize our body and mind. The inner aspect of yoga, Antarang, includes controlling of senses, pratyarthara, concentration, dharna, meditation, ध्यान एंड समाधि. तो योगा एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हम लोगों को हैप्पी और इफेक्टिव लिविंग सिखाता है. यहाँ पे योगा के टू एस्पेक्ट्स है, योगा के दो पहलू है, एक आउटर और दूसरा इनर. आउटर एस्पेक्ट योगा का क्या है? वही रंग, जिसको आउटर जो एस्पेक्ट है योगा को सब वही रंग बोलेंगे. और इसमें क्या क्या किया जाता है? यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इन सब को हम लोग यूज़ करते ताकि हमारा जो बॉडी और जो माइंड है वो रिवाइटलाइज रहे. हमारा जो इनर एस्पेक्ट ऑफ योगा है इससे हम लोग अंतरंग बोलेंगे. आउटर एस्पेक्ट को वही रंग और इनर एस्पेक्ट को अंतरंग. इसमें हम लोग सेंस को अपने कंट्रोल करते हैं, जैसे कि प्रत्याहार, कॉन्सेंट्रेशन, धारणा, मेडिटेशन, ध्यान एंड समाधि. महर्षि पतंजलि डिफाइंस योगा एज योगा vritti nirodha. It means that yoga is regulation of mental processes. It is only through self-regulation one can excel in performance. That is why yoga is also considered as the ability to perform actions with excellence. Yoga karma sukoshalam in broad terms. Yoga may also be said as an integrated individual lifestyle. Now, after knowing the meaning of yoga, we shall try to know about the different types of yoga. तो महर्षि पतंजलि उन्होंने योगा को किस प्रकार से डिफाइन किया है? योग चित्त वृत्ति निरोधा. इसका मतलब क्या है कि जो योगा है वो हमारे मेंटल प्रोसेस को रेगुलेट करता है और हम लोग सिर्फ रेगुलेशन की मदद से खुद को एक अच्छे हर एक परफॉर्मेंस को करने में हम लोग एक्सीलेंट बना सकते. इसलिए योगा को कंसीडर किया जाता है कि ऐसा एबिलिटी है जो हमें किसी भी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक्सीलेंसी देता है. योगा कर्म सुकौशलम. अगर हम लोग ब्रॉड टर्म्स में योगा के बारे में जाने तो ये कहा गया है कि एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल लाइफस्टाइल है. अब हम लोगों ने योगा का मतलब जान लिया, चलिए अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि योगा के अलग अलग कौन से प्रकार है. बट बिफोर, हियर इज एन टेक्स्ट क्वेश्चंस 24
4.1. Try to solve these questions. चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।